My dear friends, now I am taking the next topic of K6001, strict interpretation of taxing statutes. Meaning, it is to be noted that, like penal statutes, taxing statutes are to be strictly construed. The logic behind this principle is that the imposition of taxes is also a kind of imposition of penalty, which can only be imposed if the language of the statute clearly says so. A person cannot be taxed unless the language of the statute unambiguously imposes the obligation without straining itself. Intention of the legislature to tax must be gathered from the natural meaning of the words by which it has expressed itself. Any kind of presumption as to tax does not exist. Nothing can be drawn by implication. The language must be explicit. If the person sought to be taxed comes within the letter of the law, he must be taxed. However great the hardship may appear to the judicial mind to be. In case of the words of a taxing statute are clear, the effect must be given to them. Here you see, my dear friend, in case of the words of a taxing statute are clear, the effect must be given to them, irrespective of the consequences. Neither can be language of a taxing statute be so stretched as to do favor to the state, not it can be so narrowed as to benefit the person sought to be taxed. My dear friend, this is the meaning of strict interpretation of the taxing statutes. My dear friend, penal statutes and taxing statutes are similar, and both should be construed, both should be explained in the same manner. The logic behind this principle is that imposition of taxes is also a kind of imposition of penalty. Here in this line, also you see the imposition of taxes is also a kind of imposition of penalty, which can only be imposed if the language of the statute clearly says so. So, my dear friend, I think the language of this strict interpretation of taxing statute is clear. The language is very simple, and now I will give you the Hindi version of this English language. Meaning of strict construction of taxing of statute. दंड के समान कर आरोपित करने वाले कानूनों का कंस्ट्रक्शन भी कठोर होता है। साथियों, इसमें देखिए आप क्या कहता है, दंड के समान कर आरोपित करने वाले कानूनों का कंस्ट्रक्शन भी कठोर होता है। इस सिद्धांत की पृष्ठभूमि में यह तर्क है कि कर अधिरोपण दंड के अधिरोपण के समान है, यानी कर अधिरोपण दंड के अधिरोपण के समान है, जिसे तभी अधिरोपित किया जा सकता है जब कानून की भाषा स्पष्ट ऐसा निर्देश दे। किसी व्यक्ति पर तब तक अधिरोपित नहीं किया जा सकता जब तक कि कानून की भाषा में बगैर कोई खींचतान किए हुए स्पष्ट ऐसा वर्णित न हो। विधायिका का कर आरोपित करने का आशय उसके द्वारा प्रयोग की गई अभिव्यक्तियों के प्राकृतिक अर्थों से स्पष्ट होना चाहिए। किसी प्रकार के अभिप्राय या उपधारणा के आधार पर कर का अधिरोपण नहीं माना जा सकता। विवक्षा के आधार पर कर अधिरोपण नहीं हो सकता।
यदि भाषा स्पष्ट वर्णित है तो कर अवश्य अधिरोपित किया जाना चाहिए, भले ही ऐसा करने पर न्यायिक मस्ती में कष्ट की अनुभूति होती हो। यदि सम्राट कर वसूल करना चाहते हुए भी प्रजा को विधि की आत्मा के अंतर्गत आता महसूस होता हो, यदि किसी कर कानून की भाषा स्पष्ट हो तो उसे परिणाम की परवाह न करते हुए उसे लागू किया जाना चाहिए। आर्थिक भार डालने वाले कानून को उन व्यक्तियों जिन पर भार डालने की इच्छा है के पक्ष में कठोर रूप में निर्वचित किया जाना चाहिए। किसी कर कानून को निर्वचित करते समय निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए यह देखना उचित नहीं कि कोई विशिष्ट निष्कर्ष वांछित है या नहीं। कर विधान की भाषा को इतना खींचना उचित नहीं जिससे राज्य के पक्ष में पक्षपात होता हो, और न ही उसे इतना सीमित किया जाना चाहिए कि व्यक्ति जिस पर कर का भार डाला जाना हो उसे लाभ मिले। साथियों, ये था स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्सिंग स्टैट्यूट की हिंदी। मैं ऐसा समझता हूं इंग्लिश लैंग्वेज भी बिल्कुल सिंपल और क्लियर है और हिंदी वर्जन भी इसका बिल्कुल स्पष्ट है कि टैक्स क्यों लगाना चाहिए और कैसे लगाया जाता है और कानून को किस प्रकार से उसके कंस्ट्रक्शन को देखना है और कैसे उसका इंटरप्रिटेशन करना है कि टैक्स से सरकार की इच्छा भी पूरी हो और ऐसा भी ना हो कि किसी व्यक्ति पर नाजायज टैक्स लगे। ये सभी बातों का ध्यान इस स्टैट्यूट में, टैक्सिंग स्टैट्यूट में रखना पड़ता है। अब मैं साथियों एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। ये एग्जाम्पल साथियों मैं पहले भी दे चुका हूं। कौन सा एग्जाम्पल? एक बिहार का केस है, राम अवतार वर्सेस टैक्स इंस्पेक्टर। वो क्या केस है, पहले मेरे वीडियो में आप देखेंगे, पहले भी एक एग्जाम्पल दिया है। इसमें क्या है, वो व्यक्ति ये पान की पत्तियों का बिजनेस करता है, यानी बीटल लीव्स का बिजनेस करता है, और कर अधिकारी उससे कर मांगता है और वो ये कहता है कि पान की पत्तियों पर कर नहीं लगना चाहिए। कर अधिकारी ये कहता है कि लगना चाहिए। वो नहीं माना तो वो व्यक्ति उसने हाई कोर्ट में अपील डाल दी। और हाई कोर्ट में अपील क्या डाली कि मेरे ऊपर पान की पत्तियों की बिक्री के ऊपर बिक्री कर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये सब्जी की परिभाषा में आता है। और उसने एज वेजिटेबल की डेफिनेशन शब्दकोशीय आधार पर यह दी कि वेजिटेबल क्या होती है, प्लांट्स एंड इट्स पार्ट्स आर कम्स अंडर दी वेजिटेबल। तो उसने कहा ये पान की पत्ती भी तो प्लांट का पार्ट ही है, इसलिए ये भी वेजिटेबल है। जब वेजिटेबल पर कर नहीं लगता तो पान की पत्तियों पर भी कर नहीं लगना चाहिए। ये हाई कोर्ट ने अपील खारिज कर दी। वो सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसके अपील खारिज कर दी। क्या कहते हुए खारिज की कि पान की पत्तियों पर कर इसलिए लगेगा क्योंकि स्टैट्यूट के अंदर साधारण और प्राकृतिक भाषा ये कहती है कि कर लगना चाहिए। हमें विशिष्ट भाषा यानी तकनीकी भाषा, शब्दकोशीय भाषा, बॉटनिकल भाषा या और किसी प्रकार की सख्त भाषा पर नहीं जाना चाहिए, ना उसका विश्लेषण हमें इस नियम के अकॉर्डिंग करना चाहिए। क्योंकि जब एक साधारण समाज में एक बात ये कही जाती है कि पान की पत्ती की सब्जी बनती ही नहीं, तो इसका अर्थ है उसी प्रकार से तो रहना चाहिए। शब्दों के इतने गहरेपन में क्यों जाते हो, जब साधारण अर्थ ये है कि पान की पत्तियों की सब्जी नहीं बनती। तो इसका व्यापार यदि किया जाता है तो उस पर कर जरूर लगेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अपील को हाई कोर्ट के फैसले को बिल्कुल ठीक बताया।
तो दोनों कोर्ट्स ने उस राम अवतार की अपील को खारिज किया कि पान की पत्ती का यदि आप बिजनेस करते हैं तो उस पर बिक्री कर जरूर लगेगा, क्योंकि पान की पत्ती आपने जो कहा वेजिटेबल्स के अंदर आती है, ये वेजिटेबल्स की परिभाषा में नहीं आती। कानून का साधारण और प्राकृतिक अर्थ यही कहता है। तो साथियों, ये एग्जाम्पल आज भी मैंने बता दिया और पहले भी बता दिया। अब यहां पर क्या है, स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्सिंग स्टैट्यूट में ये कैसे आता है? ये एग्जाम्पल इसलिए आता है कि साधा यदि उसको साधारण रूप से और पत्तियां सब्जी, लेकिन स्ट्रिक्ट सेंस में स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन किया क्या, जब उसकी सब्जी नहीं बनती तो उस पर टैक्स भी लगना चाहिए। उनकी परिभाषा स्टैट्यूट बिल्कुल उसका क्लियर लिया गया, उसका स्वाभाविक मीनिंग लिया गया, उसका साधारण मीनिंग लेते हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने टैक्स की इजाजत दी। यही है स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स स्टैट्यूट्स। साथियों, मैं ऐसा समझता हूं कि हिंदी में भी और इंग्लिश में भी इस स्टैट्यूट की परिभाषा, टैक्सिंग स्टैट्यूट की परिभाषा क्लियर हो गई। का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।